start with the feet. We either start with the neck or we start with the back. So ample oil application is needed so that the oil can be spread properly to the whole of the feet. We do not want to use less oil here. We want to conserve the oil, but we need proper lubrication for the massage. Please. Please relax your feet. Relax your head and relax your feet. Look, there is no one. So once we start with the massage, we need to stabilize the feet first. So stabilize the feet, I am holding on to the thumb. So these are the linear strokes that I am doing. I am spreading the oil with these strokes and I am massaging also. So the patient here is feeling the pressure that I am giving. No one else can feel the pressure. You have to have the abhyang first on your body, then you can know how much pressure we need to give on to the patient. You can change the fingers, don't just hold one finger. It creates undue pressure on that joint, on that finger. So these are the linear strokes with the hand. If I do not stabilize the foot, it will move. We do not want the foot to move. We can stabilize it like this or we can hold on to it. So this is one. This is the linear movements. Now to move on to the metatarsals that I talked about in the class. These are the metatarsals. So we will do linear massage on the metatarsals. You can move to this side if you are not able to see. मैं थोड़ी देर साइड पे वेट कर लो देख लेना तब बता लो ठीक है सो दिस इज द वे वी मसाज द metatarsals in a linear fashion. Up and down both? No, I am applying pressure only in the upward direction. Patient can feel it. I am not doing it like this. It is pressure only in the upward direction. My hand is returning, but it is without pressure. Upward direction. I am massaging right now in the upward direction. From below up. So it is basically this. It is basically this. Your upbringing is done in the direction of the hair. On the foot or on the parts where there are less hairs, you can go in both directions. And on hairy parts also, you must cover both directions. Majorly it should be done in the direction of the hair. So the massage is basically from below upwards. The patient can feel it. You all see the coming back of the hand as a maneuver, but it is not a maneuver. It is pressure free recovery of the hand. And then in the direction of the hair above. Both can't be simultaneously, just you finish one and Yes, we finish once and then we move to the other. And then we come to the ankle massage, which is circular massage. We have two measures of doing this. One is circular massage like this on the ankles, or you can stabilize one side and go with the other side. either clockwise or anti-clockwise. Yes, we have to cover it in both ways because not everything happens in clockwise and not everything happens in anti-clockwise. So first we should start with clockwise or anything, anti-clockwise. Anti-clockwise. It's your choice. Anything, Yes. but it should be both. You can't be mixing it up like clockwise, anti-clockwise, anti-clockwise. So once one, then after that. Yes. Then only the other. Yeah. Once you are done with one thing, we move on to the next thing. Then after that, we have a rest with the first one. That is the difference between classical massage and haphazard massage. A person who is not trained will do the same move again and again multiple times, but the person who is trained will do it only in a particular fashion. A person who has taken massage from a trained person, trained therapist, can make the difference between an untrained and a trained. So now we are done with the metatarsals, the ankles, and the lower part of the calf. Now we will come to the fingers. So this is the
pulling of the fingers. These are the linear movements on the fingers. We try to pull on the fingers, not very harshly and not very gently either. We are pulling on the fingers 2 at a time. If you try to pull on one finger, your hand will destabilize. So you need to use 2 hands, pull on more than one finger at a time. This is milking, that what you Yes, said. this is milk. This is also milking. On bigger fingers, you can do it in this fashion. This is also milking. Then there is pressure on the web of the fingers. This is a technique I did not mention in the slides, but I am elaborating it here because this is a practical maneuver. This cannot be explained in the slides. Pressure on what? Pressure on the web of the fingers, Between. on the between spaces. This is very relaxing. Now I need to turn over. So this was the supine position. Now he is turning into the prone position. I am going to continue on that foot only. The other foot is for all of you to practice. Now on the under surface of the foot, you can see the texture of the sole he was wearing on the foot. So these are the linear movements on the below surface of the foot. It is better to have the feet hanging outside the No, table. no. We need them supported. We can support it on a hand or we can support it on the table. It is better to use both your hands while doing these movements. But I understand, but if the feet is hanging outside, then No, if the feet is hanging below, please sir come move a bit downwards. Yes. If the feet is hanging here, you will not be able to apply the pressure. You can see this. The foot is going down. Right. We need it fixed. No part of the body should be hanging. A bit more above. Sir. Yes, yes. This is good. So these are the linear movements, or they can be like this. In massage, there are many hand techniques that you learn only when you are doing the practical. Theory is very different. When we come to the practical, many things change in their original perspective. So, and this is the knee, this is the heel of the patient, and we might not be able to apply pressure over here like this, so we need to apply pressure in the opposite direction. This is the linear massage. This is also linear massage. The patient can see that I am applying pressure only in one direction. The other is just the comeback. is it indicated for burning like diabetes patient? I did not get the question. So for diabetes patient, they have feet burning, right? Yes, Is it indicated for massage? yes, massage can be done. There is a special oil, Chandan Bala Lakshadi oil, which is used for burning. And now milking on the fingers, please leave your pressure, foot pressure on my hand. So this is the milking of the fingers. We only do circular motion on sides, right? Circular motions over there, this part, and circular motion on the sole also can be done. But that is a later point. That is a and then pressure on the interspaces. Now, to come on to the circular movements, you need to move on to the side of the patient. Please come on this side, everyone. And then you can move. Sir, please relax your foot. And then you can move with the circular movements on this one. We do the circular motion in last, right? Yes, this is the last thing. Only kneading comes after this, and circular movements on the joints of the fingers. So this is the circular movements on the soles.
Then after this, there is the kneading part. Now I am standing on this direction for a reason, because only in this direction can I apply pressure with my thumbs properly. This is the kneading. Kneading always with two thumbs closely approximated and good pressure on a single point. Never like this. That's Always with two thumbs so that you can stabilize the patient. If you are doing it like this, the feet will start moving, Right. and you will not be able to apply good pressure on that point. So this is the kneading part, and then circular movements on the joints of the fingers. You are trying to twist the fingers. This is the circular movement. It does not have a direction that you need to need the patient in supine or prone. You can do it in any direction. You are basically trying to twist onto the fingers. If there is pain in the finger, if there is injury, you do not twist the fingers. This is not a very important maneuver. So this is the full massage. Now I want all of you to try it. You have 2 feet. Sure. One has been done. Yeah. The other is free. Yeah. So if someone wants, this is the go backward. We start applying more pressure. I'm just spreading the oil over it so that there is no dry patch on the scalp. Now the scalp is properly oiled. We need a towel here so that the oil does not drip into the clothing. So this is the spreading of the oil. These are the 4 backward strokes. This is the first thing. Then this is the picking stroke. They have to be sharp. If you do not do it like this, you can set it more of a relaxed stroke than they do regularly, because they are the therapists, they know the patient's attitude. But these are the classic strokes that I can do. This has to be sharp, like you are picking something. This has to hit the scalp. This is the picking. Then flat palm strokes. Flat palm strokes. Feet and hand, we keep it separated. It can be included, but This is 500 rupees. but won't be like इधर हमने एक part छोड़ The दिया. one that you did is 250. So it won't be The like one that we will do after lunch is 1000. This is the difference. so if we leave one part, so it won't create some like No. the other part will benefit नहीं होगा. No. So these are the techniques that I talking about. And then there's the squeezing. This is the squeezing. I am not pulling anything. I am squeezing. I am squeezing the hair from the roots only gently, not with much pressure. सर आपको अच्छा लग रहा है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही? So I am squeezing the hair from the roots, लेकिन जोर से नहीं. अगर थोड़े से कम होते तो I would say. Then once that is done, then there is another stroke that I do, that we do here, but उसको वहाँ बताया नहीं जाता because there is no way to explain it. This stroke. सिर आपने टर्न कर लेना पेशेंट को. Only with the fingertips. Is it a gentle? No, it is not gentle. अभी ये आपको सिखाएंगे. इनके हो गई है and he knows the pressure.
So you cover one side of the head first. And once that is covered, you go to the other side. ठीक लग रहा है सर आपको? गर्दन घुमाने का कोई खास मकसद भी है इसमें? क्योंकि अगर हम ऐसे करेंगे तो ना प्रेशर इधर लगेगा ना इधर लगेगा, तो उसको हम ऐसे सेट करेंगे जिस डायरेक्शन में मुझे नेक को सपोर्ट नहीं करना। फिर जब ऐसे हो गए नीचे करना सर, इधर से इधर बैक साइड को भी कवर करेंगे। बहुत जरूरी है पार्ट। हाँ, झटका लगेगा, प्रॉब्लम नेक में आ जाएगी, कसूर आपका बच जाएगा लेने के दिन। स्टेबिलिटी बहुत जरूरी है। Is there any age group to whom it can't be given? नो एज स्पेसिफिक लिमिट, सिर्फ लिमिट ये है कि अगर For the पेशेंट को कोई children's नेक की also. प्रॉब्लम है For the तो ध्यान children's? चलिए हर बार बताते हैं कि जब क्लाउड हो तो नहीं करना। नहीं अबेक के अंदर, अबेक के अंदर। सो these were the techniques, then there is the pressing. This is the pressing. मसाज से भी करना। And what would be the minimum age, like children na? Or If a child infants? can hold his neck, he is good for massage. If he cannot hold his neck, you can lie him down and then use massage. No issue. From the bond day you can. Not from the Sir, but ये क्या at least a month. A हाँ month also. लास्ट में क्या किया? Pressing. ये लास्ट No, this is not. There is one more step, but it is not generally recommended. It leads to manual pain, chest. It is generally done in the desi massage. We do it here also, but it is not taught to young therapists like yourself. Because ये जब देखेंगे ना आप तब समझ आएगा। सर वो दोनों हाथ से ऐसा ऐसा करते हैं वो तो बिल्कुल नहीं करना। वो तो हाँ वो जिसको PIBD है उसका गया फिर से करते हैं। ये कर सकते हैं, लेकिन इसमें भी प्रेशर कम। वो उसमें भी बहुत आता है वो। ऑफिस वाला ना वो प्रॉब्लम में ज़्यादा करते हैं। वो एयर कटिंग वाले करते हैं जबरदस्ती बोलते हैं तो चलो कर दे कभी। एंड देन यहाँ पे साइनसेस की लोकेशन होती है पीछे, हेथमॉइड, यहाँ टेम्पल एंड पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ द ईयर। उसके बाद फिर ईयर मसाज। ईयर में एक उंगली रखनी है, एक रखिए अपर की जगह, उससे कर सकते हैं मैनूवर। एक उंगली आपके अंदर रहेगी, बाकी आपके बाहर है। ईयर में जो मर्जी करें, ईयर को ऐसे करें, ईयर को ऐसे करें, ईयर को ऐसे करें, ऐसे करें, कोई समस्या नहीं। चाहे पीछे को पुल करें, एवरीथिंग इज गुड। एक बार शेप देड़ी सारा सर्कल देखें डेमो द्वारा तब शुरू करो। एक स्विच है, एक बंदा वन मोटिव नाउ इधर आ, दिस इज द So firstly I am spreading the oil, smearing the oil properly, all the portions which I am going to massage. If the oil is not properly spread, you will end up hurting the skin underneath. So एक दो बार में तो oil ही spread होता है, जैसे भी oil spread हो गया। So जैसे मैंने आपको बताया था, chest के ऊपर जो maneuvers हम करते हैं, these are circular maneuvers, ठीक है? चेस्ट के ऊपर सर्कुलर मैनूवर्स करते हैं। अगर फीमेल चेस्ट हो, आप पेन थेरेपिस्ट तो नहीं करेंगे, लेकिन मेरा बताना आपको काम है, तो आप साइड पे रहेंगे। तो यहाँ पे सर्कुलर रोटेटरी मूव से रहेंगे। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज ओनली स्टमक पे हम एंटी क्लॉकवाइज नहीं करते। क्लॉक वही करते हैं। तो ये भी बड़ा तेल है। ठीक।
सेंटर में, यहाँ से करें, नकल से नहीं करना, इम्प्रोविजस। इनको PIP जॉइंट्स कहते हैं, PIP। यहाँ पे हम प्रेशर डालते हैं, ठीक है। अभी पेट के ऊपर ऐसे चलेंगे सर। अभी मैं सीधे लिटा के जो चीज़ आपको दिखानी है वो दिखा रहा हूँ, उसके बाद मैं बिठा के उल्टे करके भी, ठीक है। सो ये हमने चेस्ट की और एब्डोमेन की देखी, इसमें इतना ही। अब बाजू में कौन सी बैठ जाओ? इसमें आप ऐसे रहेंगे, ऐसे स्पेसिफिकली टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा, हाथ तो गलत हो जाएगी। सर्वर स्टार्ट करके आप देखते जाएं, मेरा हाथ कभी भी अगर गलत हुआ तो आप मुझे पॉइंट करें। आप रिलैक्स हो जाए, बाजू मेरे हाथ में छोड़ दे, छोड़ दे, अभी वजन नहीं है, अभी वजन नहीं है, छोड़ दे। अब तो ऐसे आपने प्रॉपरली इसको ऑयल कर लेना। सो अभी तेल ने बॉयल इधरले पासे तुम देर लगा वहाँ तक, अगर आप में से कोई करना चाहता है साथ में तो देख सकता है, ठीक है। सो जैसे मैंने पहले प्रॉपरली ऑयल करना है, ऊपर नीचे आगे पीछे सभी जगह ऑयल हो जाना चाहिए। अभी हम लेटरली चलेंगे, बाजू की लेटरल साइड पे स्ट्रेट लीजिए तो साथ। सो मैं सिर्फ ऊपर को जोर लगा रहा हूँ, जिनको लग रहा है उसको पता चल रहा है, हाथ मेरा जा रहा है दोनों तरफ को, लेकिन जोर सिर्फ इस डायरेक्शन में, दोनों तरफ जाएगी, दोनों तरफ जाएगी, दोनों तरफ जाएगी। बहुत सपोर्ट है, लेकिन अभी अपवर्ड है, बाद में हम ऊपर से नीचे जाएंगे। सो ये नीचे से ऊपर फिर ऊपर। मैंने यहाँ से पकड़ा हुआ है, यहाँ पे बाजू मिल जाए, अगर हिलेगी तो फिर कोई फायदा नहीं। वहाँ पे हो गया नहीं, हार्ड फास्ट हो रही है कि मतलब अपवर्ड करना है, डाउनवर्ड से स्टार्ट दोनों तरफ हिलने लगता है। अगर बाल ज़्यादा हो तो फिर हम देखेंगे, नहीं तो दोनों डायरेक्शन पर एक एक कर, इधर को स्टार्ट करें फर्स्ट, अभी एक एक कर। डाउनवर्ड से स्टार्ट करते हैं, अपवर्ड से स्टार्ट करें। हाँ, अभी जो ऊपर पोर्शन रह गया था उसको अब यहाँ से मैं ऐसे नहीं आऊँगा, कोई फोर्स नहीं देगी, तो ये आपकी जजमेंट है कि आपने कैसे चलना है। सो अभी हमारे पास जॉइंट्स हैं, सर देखिए भी उनका हाथ ऐसा नहीं हिल रहा, क्योंकि मैंने उसको पकड़ा हुआ है, कैसे पकड़ा हुआ देखा, जरूरी नहीं कि मैंने ऐसे ही पकड़ना है, फिर कुछ होएगा ही नहीं। हमने सिर्फ उसको स्टेबलाइज करना, ठीक है, स्टेबिलिटी चाहिए। ये फ्रंट से हो गया, ये बैक से पेशेंट पे पूरा आपको फील होती है, तो वैसे एल्बो के ऊपर आप मुट्ठी बंद कर लेते,
एल्बो को स्टेबलाइज करने के लिए हमें फिंगर मुट्ठी बंद करनी पड़ती है। विंग की आर्म थोड़ी बाहर को निकल रही तो जनरली आर्म फ्लेक्स कर ऐसे रखती है, ये बाहर आ रही है, ठीक है। मुट्ठी बंद आ रही है आराम से, ज़्यादा टाइट। घुमान अब ये यहाँ पे एंगल सही नहीं, धीरे छोड़ तो मैं साइड पे लेता हूँ, मैंने स्टेबलाइज करना है, ये मेरा काम है। डिसाइड आपको करना है कहाँ से ब्लड प्रेशर लगा। हाँ, इधर जो ये बोन्स लॉन्ग बोन्स है आपकी, आप रिलैक्स छोड़े बाजू छोड़ दो, ठीक है। सो इसमें हम लीनियर मूवमेंट कर लिया। अब मैं वेब स्पेस को दबा रहा हूँ, ठीक है। अभी फिंगर्स की मिल्किंग लीनियर हो जाए। फील्ड में मैंने डेढ़ सर आई एज्यूम कि आपने यहाँ पे प्रेशर किया है, अभी सो इज दिस प्रेशर यहाँ पे प्रेशर है सर, इनसाइड इसके अंदर सेंट्रल पॉइंट। प्रेशर ओके जैसा पैर में हमने दिया तो कोई रबिंग नहीं है इस पर, मतलब प्रेशर में हमने पैर में वैसे दिया था। आपने बताया था नेक से स्टार्ट करना होगा। हाँ जी, वो बिठा के होता है। अभी हम पहले पेट का कर रहे हैं, ठीक है। सो अभी यहाँ पे जैसे स्टेबलाइज करके एक फिंगर से तो हम उस फिंगर को कर रहे हैं, दूसरी फिंगर स्टेबलाइज करके दूसरी फिंगर के ऊपर। अभी मेरा प्रेशर ऊपर को लग रहा है, हाथ दोनों तरफ चल रहा है। आप जब भी मेरा हाथ ऐसे ऐसे चले तो आपने देखना है कि एक बार ऊपर को चलेगा, बाद में नीचे को चलेगा, ठीक है। सो वन मोमेंट इज दिस, सेकंड मोमेंट इज दिस। आपने खुद ही डिवाइड कर लेना, कंफ्यूज नहीं होना। हाथ मेरा दोनों तरफ को चलेगा, लेकिन प्रेशर एक ही तरफ को लगेगा। सो भी वो हो गया। अब नीचे अभी जब हमने रीडिंग कर दी तो हाथ अपनी कंफर्टेबल पोजीशन में ले, चाहे पेशेंट के यहाँ हो चाहे बाहर हो। आपने देखना है कहाँ कंफर्टेबल है, जहाँ पे आपके हाथ का जोर लग जाए और पेशेंट को डिस्कम्फर्ट हो। दोनों रुपये कोशिश करके ऐसे ऐसे करना। तो ऐसे ना करने के लिए कि स्टेबल नहीं होता, स्टेबल नहीं होता, प्रेशर नहीं होता। एक जगह प्रेशर नहीं है, प्रेशर नहीं कर अगर सेकंड बेस्ट आप ऐसे भी कर सकते हैं। फिंगर्स को रोटेट भी करेंगे, ज़्यादा प्रेशर नहीं है, ऐसे नहीं ट्विस्ट करेंगे कि उसको पेन हो पेशेंट को। हम उनको सॉफ्टली रोटेट करेंगे। मैंने स्लाइड करना है रोटेशन में। almost similar to the feet. एवरीथिंग इज सेम। सो बाजू का हो गया, ठीक है। हो गया सर आपका? सर उठ के बैठिए। बिठा के हो सकते हैं, उल्टे लिटा के हो सकते हैं। हाँ जी, बगल में भी करना चाहते हैं लेकिन वो साइड को करना है। अभी ऑयल की एप्लीकेशन होगी, तो अगर गर्दन में हमने करना है तो ऊपर से नीचे को आना, फ्रॉम अबाउट डाउनवर्ड्स।
आप पीछे खड़े हैं इधर कर लेना, थोड़ा सा उधर को उधर को घूमना। ओ बस सो ये ऐसे है। यहाँ पे मैं आपको गर्दन की दिखा रहा हूँ इसलिए आई एम लिफ्टिंग माई सेल्फ, अदरवाइज हम क्या करते हैं। सो इसमें दो हो रही है, गर्दन की भी हो रही है, शोल्डर की भी हो रही है, इसमें डबल हो रहा है ये। लेकिन बात का स्टेप अभी आपको एक एक स्टेप बता रहे हैं, आपने लिंक उनको खुद ही कर लेना। तो बाद में होगा, एक एक आ जाएगा तभी होगा। हाँ ठीक है। फिर एक एक नहीं सीखेंगे तो आगे का नहीं होगा, गड़बड़ हो जाएगा। सर्कुलर मसाज ऑफ द शोल्डर्स, ये लीनियर मसाज ऑन द चेस्ट, ये सर्कुलर ऑन द चेस्ट। ये जो चेस्ट के जहाँ पे आप प्रेशर नहीं डाल पाते थे पहले, हाँ हाँ, अब आप दूसरी पोजीशन में वहाँ प्रेशर डालें। प्रेशर जाएगा। ठीक है। तो सीधा फ्रंट पर ही था प्रेशर, यहाँ नहीं। अभी नीचे से ऊपर को नहीं कर देंगे, ऊपर से नीचे। ऑयल सभी जगह लगा हुआ है, चाहे कान पे लगा हो, सिर पे लगा हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाद में हम उसको ऑयल कर सकते हैं। फिर जब स्पाइन के ऊपर करना है तो इसमें थोड़ा थोड़ा सा नीचे से जाएगा। इसमें थोड़ा कॉशियस रहें। अगर आप जैसे अभी अभी करना शुरू करते हैं तो एक से करेंगे तो हाथ स्लिप कर लेंगे, ठीक है। दो से भी करेंगे तो भी ऐसे बॉबल करते जाएंगे, तो ऐसे करें। एक दूसरे नहीं, थोड़ा सा एक्स्ट्रा एक दूसरे के ऊपर चढ़ा, इससे स्लिप नहीं करता है और डैमेज होने का चांस कम हो जाता है। बाद में जब धीरे धीरे आपकी वो बढ़ जाएगी तो फिर आप ऐसे आ जाएंगे, लास्ट में ऐसे। हमने उसको डैमेज नहीं करना, सर स्पाइन पे प्रेशर डालना है तो कुछ नहीं ऐसे प्रेशर नहीं बढ़ा, प्रेशर मेरा एक इधर है एक इधर है, अच्छा एक बार बीच में बच्चा साइड पर है। ही, साइड पर ही। मैंने उसको क्रॉस कर लिया ताकि स्लिप ना करे, ठीक है। बाद में सेंटर पे आ गए, प्रेशर फिर भी यहाँ से, अंगूठे का प्रेशर हमेशा यहाँ से जाता है, या यहाँ से जाता है या टिप से जाता है, बैंड बीच में से नहीं जाता। सो यहाँ पे क्या है कि एक इधर प्रेशर है एक इधर प्रेशर है, ऊपर से आपको सेंट्रली उनको मैच किया। आप बताएं सर, एक प्रेशर इधर है एक इधर है, बराबर है दोनों साइड्स पे प्रेशर, सेंटर में नहीं है। तो इसमें भी साइड से प्रेशर, सेंटर में तो प्रेशर हमने देना ही नहीं देना नहीं है। किसी भी कंडीशन में। अच्छा स्पाइन में भी मतलब पैसा नहीं देना चाहिए। स्पाइन के ऊपर नहीं प्रेशर, हाँ साइड। साइड में देना चाहिए। अच्छा एक अभी जैसे मेरे थम्स दोनों बराबर चल रहे हैं, फिर आपका काफी हो सकता है लोग कैसे चले उसको कैसे पता चले, नहीं चलता। ठीक है। तो उसके लिए आप बेटर है कि ऐसे क्रॉस कर लें, एक प्रेशर इधर डाल रहे हो एक इधर डाल रहे हो, इसलिए वो स्लिप नहीं करता। लकड़ी का मसाज रहता है, स्पाइन ऐसा लगा रहता है। स्पाइन से उससे स्पाइन पर किसी भी खुद तरह खुद से कर नहीं देना, सकते मतलब स्पाइन यहाँ से पे और लकड़ी यहाँ का से होता भी है नहीं ना, देना। पहिया लगा रहता है, ऐसे कर सकते हैं खुद यहाँ पे आप कुकिंग कर सकते हैं। स्कैपुला में। स्कैपुला के ऊपर स्कैपुला को कोक किया जा सकता है, लेकिन कोकिंग के लिए ये हमेशा ये ध्यान रखना है कि दोनों अंगूठे साथ साथ चलें। अलग अलग चलेंगे तो फिर प्रेशर कहीं भी नहीं आएगा, ठीक है। अभी यहाँ पे सर्कुलर ऐसे, चाहे इधर करें चाहे स्पाइन के ऊपर करें, कोई समस्या नहीं, क्योंकि सर्कुलर में इतना जोर नहीं पड़ता। सही स्पाइन में जो नहीं है उंगली से नहीं करना। इधर को भी ऐसे, एंटी-क्लॉकवाइज। ठीक है। जो सर बात कर रहे थे कि बगल में नहीं हुआ, बेसिकली क्या करते हैं हम साइड में लिटा के हमेशा फिर बगल में करते हैं, लेकिन वो मूवमेंट्स यही होती है। बाजू हमारे कंट्रोल में, बगल से नीचे लिटा के करना है। लिटा के बाजू इतनी डिफिकल्ट पोजीशन पे नहीं आती नहीं आती। जितनी अभी आई होगी, ठीक है। एक बार सर आप मुँह पे बदल लें, पीठ की बता थोड़ी सी। पहले आपने तेल स्प्रेड सर्कुलर मसाज ही करना है, लेकिन उसमें जोर नहीं करना, इसमें सिर्फ हम स्प्रेड करें। जब स्प्रेड हो गया, अभी स्पाइन के ऊपर 3 मूवमेंट्स बेसिक है। हाथ ऐसे ज्वाइन कर लें, एक तरफ की स्पाइन के ऊपर नहीं आ रहा है, साइड पे ही रह रहा है। सो ये लीनियर है, अभी नीचे से ऊपर को जोर लग रहा है, ऊपर से नीचे को कोशिश नहीं। स्टेप ऑल ओवर द स्टेप लाइक इन दिस अब ऊपर से नीचे, जल्दी क्या होता है, एक मिनट और जैसे मैं कर रहा हूँ तो वो हिलेगी नहीं, जो एक एंगल पे करते हैं दूसरा मैं करता हूँ तो हिल नहीं ज़्यादा, नहीं तो पेशेंट स्टेबल ही रहता है। एक ये है, एक दूसरा स्टेप है। अगर आपका हाथ तक गया तो movement को ऐसे करना।
एक से आप कवरिंग दे रहे हैं, काम यही कर रहा है। दूसरे पे आके सपोर्ट दे रहा है, जब खाली हो जाता है ना ये, क्योंकि हवा नहीं लगनी चाहिए, ठंडा नहीं होना चाहिए। जब यहाँ पे हम मसाज कर रहे हैं तो पंखा से चलाना पड़ेगा, यहाँ पे करेंगे एयर कंडीशन, पंखा नहीं, यहाँ पे तो एयर कंडीशन, हाँ AC में टेम्परेचर लेकिन आपको 26-27 रहेगा। 26 ग्लव की ये प्रॉब्लम आती है, ग्लव तेल से फट भी जाता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जब लोअर बैक पे हमें तो स्पाइन के दोनों साइड पे ऐसे भी चलेंगे। यही सारी मूवमेंट्स हैं, इनको आपने भी प्रैक्टिस करना। यही था जो आप कहते थे हाथ सेंटर में। हाँ, एक का प्रेशर इधर, एक का इधर, सेंटर पे ना है बस। ये हाथ को पूरा फैलाएं, यूज़ करें, धीरे धीरे आपको समझ में आएगा। स्पाइन पे करने पर क्या हो? अगर दब गया तो कंप्रेशन आपकी नस दब जाएगी, कंप्रेशन PIVD हो जाएगी। अगर पहले से है तो दर्द बढ़ जाएगी। ठीक है जी, फॉलो कराओ। अच्छा ये कफ और हीट इशू में हेल्पफुल नहीं, स्कैपुलर ही करो, इतने बहुत जो नहीं पड़ता, ये तो नसा निकल गया फिर दिक्कत है। ये कफ और हीट इशू में हेल्पफुल है। हाँ, कफ हाँ कफ हाँ उसमें कपूर मिला के शुरुआत में कपूर मिला के फ्रोजन शूट नहीं, मसाज तो हर एक चीज़ है। एक्सपीरियंस अभी हो रही है ऑयल स्प्रेडिंग। पाँव की हो गई थी, अभी पाँव की नहीं हुई, सिर्फ टांगों की कर। फेस बचा है ना? फेस का भी अभी टाइम ही नहीं है, कल कर देंगे। हो गया वो अच्छे से किया। पीस से कोई मैटर नहीं था, पीस आप एक भी कर सकते पहले स्लो है, हाँ, मतलब slow। हाँ एक्सपीरियंस हो जाएगा तो। और सर जो एक लीनियर मोशन होगा वो एक जॉइंट को कवर करके ऊपर ही जाएगा। जैसे आपने कोई लीनियर मोशन है वो कवर नहीं में करेगा। कौन है? रूम नंबर 4 में कौन रह रहा है इस टाइम? हाँ मैं 14 प्रोटीन का वो चाहे एक लीनियर मोशन होगा हो सकता है, लेकिन उसे प्रेशर नहीं मिलेगा, प्रेशर एक ही जगह पे। अच्छा मतलब इतना कवर करके रुक गया, जॉइंट के मतलब यहाँ पे नहीं आया, जॉइंट को फिर सेट कर देगा। लंबा नहीं, ना दस लंबा नहीं, उसमें लंबे ना प्रेशर नहीं है, प्रेशर थोड़ी जगह पे होगा। ये एंड थे बस 2-4 बार लाते से जो लग रहा है पूरे लाते वगैरह का तो स्पाइन में इतना ही करना है। स्पाइन पे एक सर्कुलर मूवमेंट होगी, थोड़े देर रिजीम सर्कुलर होगा। साइड में है। जो मैंने आपको बताया आपने वो देखो, इनका सर देखिए ये कैसे। तो सर ये इसमें पेनफुल नहीं हुआ, जैसे मैं लग रहा है कि काफ़ी पेन कर रहा हूँ। साइड नहीं कर रहा। वो ऊपर कर रहे हैं, साइड पे नहीं हो रहा। इतनी नहीं दबा वो दोनों हाथ से साइड से करते हैं चौकी मैं आपको बता रहा हूँ, वो आपको मैंने बताया आपने बताया। स्पीड को इसमें सर देखें कि कैसे कॉम्बिनेशन पे स्पीड से हम कर सकते हैं ताकि हमारा काम हो जाए, प्रोसीजर में टाइम लगा। बेसिक आ जाएगा तो आप उसको चेंज कर सकते हैं। अगर आप गलत सीख जाएंगे फिर आपका कहीं भी पैर नहीं बैठेगा। हाथ पैर में अगर समझो कई जगह में गिरे हुए हैं और मार लगा हुआ है तो उससे कर सकते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है, अगर दर्द हो रही है दर्द हो रहा है तो हल्का करें, जब सहना लग जाए फिर 2-3 दिन तक। तो मेरे को एक्चुअली अब आप उल्टे हो जाए, पेट के बल ऑयल कम है, और ले और लो ऐसे ऑयल
आप अपनी आप उनके जैसा मत करो, आप तो नॉर्मल जैसा बताया वो बस सीखो। यहाँ पे सीधा सीधा यहाँ सीधा सीधा आप अपना करें जो आपको बताया लीनियर बताया आपको लीनियर है उनको जैसा बताया ना, ऊपर से ऐसे नीचे तक जाओ। ये लीनियर है, इनका लीनियर है, उनका लीनियर नहीं होता। आप सब छोड़ दें, कोई और कर ले। हाँ ये सब आओ में ऐसा एक पोर्शन जैसे हमने ऊपर किया था, अच्छा यहाँ पर यहाँ फिर यहाँ किया, फिर वापस वो उल्टा। थोड़ा ऑयल और लगा मसाज से होता क्या बेसिकली, मतलब ब्लड सर्कुलेशन बिल्कुल बिल्कुल। कैसे क्या कर रहे हैं, प्रेशर होता है। जो भी कर रहे हैं आपका ना, हाथ जब आप बॉडी के ऊपर लगाएं तो ग्लाइड करना चाहिए, कहीं भी फ्रिक्शन नहीं आनी चाहिए आपको। अगर फ्रिक्शन आएगी तो आपको भी प्रॉब्लम आएगी, आप हाँफ जाएंगे, पेशेंट के बाल खिंच जाएंगे। जो भी कर रहे हैं वो भी कॉशियस होना है ना, ज़्यादा करने के बाद यहाँ नाखून भी कटे जाएगी। जो भी कर रहे हैं उसको कुछ एक्सरसाइज होता है ये। यही एक्सरसाइज करना शुरू करें। घुटने के नीचे दूसरा हाथ रखें अपना, जैसा गाँव में अभी ठीक। राजीव जी का तो क्या है कि ये 20 मिनट में पेशेंट निकाल देते हैं, लेकिन अभी आपने वो नहीं सीखना, अभी आपने घंटे वाला सीखना है, फिर 20 मिनट का। अगर अभी 20 मिनट का सीखेंगे फिर आप 5 मिनट में निकाल देंगे। तो टाइम ड्यूरेशन कम होने से तो नहीं लगी भाई उसको फायदा नहीं मिलेगा, पैसे कम मिले स्पीड देखी आपने, अच्छा फिर आपको पता चल रहा है कि फ़ायदा कम होगा या बहुत ज़्यादा होगा। उसी स्पीड पे आए फिर कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जोर भी लगना चाहिए। ऐसे ऐसी कुछ प्रैक्टिस है, अगर आप उतना जोर लगाएंगे आप 5 मिनट में आ जाएंगे। कुछ नंबर ऑफ काउंट होते हैं मतलब अप्रॉक्सीमेटली। करना शुरू करें, आपको पता चलेगा। अच्छा इट इज़ नाइसली आपने Experience. ढंग से आपने मसाज कर दिया, आपको फील होगा मसल मसाज होगी इससे रिगार्डलेस ऑफ टाइम। आपके हाथ से ज़्यादा गर्म उसकी स्किन हो जाएगी, यहाँ पे हाथ चल रहा है, हाँ जी हाँ जी। उनका हो गया, ठीक है। तो वो आपने नहीं, आपने जो नेचुरल मैंने आपको बताया नॉर्मल, उसको करना शुरू करें, आपकी स्पीड अपने आप बन जाएगी। फिर धीरे धीरे आप वेरिएशन ग्लूटियल मसल्स, ऐसे ग्लूटियल मसल्स ठीक है। मुझे सही लगता है बिल्कुल एक्सपर्ट आ गया। ठीक है ये प्रेशर, ठीक है वैसे ये सेम बिल्कुल सेम 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 हो गया।